हाय बिजनेस ओनर्स, क्या आप जानना चाहते हो कस्टमर्स को ये सक्सेसफुल डिपार्टमेंटल स्टोर ऐसा क्या वैल्यू क्रिएशन दे रहा है जिससे कस्टमर्स की इन स्टोर पर लाइन लग जाती है। इस डिपार्टमेंटल स्टोर का बिजनेस मोड क्या है, क्यों ये ही पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल स्टोर इतना ग्रो कर रहा है, इनका ऐसा क्या बिजनेस सीक्रेट है जो आप भी अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो चलिए, आज मैं आपको इस सक्सेसफुल डिपार्टमेंटल स्टोर का एग्जाम्पल लेके ये समझाता हूँ कि कैसे कस्टमर्स के लिए एक यूनिक वैल्यू क्रिएशन करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप इस एग्जाम्पल को सुनिए, समझिए और अपने बिजनेस में इस जैसा कुछ इम्प्लीमेंट कीजिए। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आपके फ्रेंड्स, फैमिली और बिजनेस सर्कल के बेनिफिट के लिए इन वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर शेयर करना। फ्रेंड्स, किसी भी बिजनेस का अपना कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने कस्टमर को एक ऐसा फैक्टर या वैल्यू दे सकते हैं जो कस्टमर अदरवाइज एक्वायर नहीं कर सकता, तब वो कस्टमर हमारा एक लॉयल और रेगुलर कस्टमर बन जाता है। किसी भी बिजनेस को ब्रांड बनने के लिए इस वैल्यू क्रिएशन अप्रोच से ही जाना पड़ता है। लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ दिस सक्सेसफुल डिपार्टमेंटल स्टोर। Like any other business, they also started with only one store, lot of competition, low margins on product, operational issues, fixed cost, underutilization of staff. They tried to increase their margins, sell some premium products, but due to high competition, nothing was working. They had a good plans to expand, but the way business was happening, they were not confident on expanding. They wanted something which will give them confidence to expand with the new stores. They were finding a solution. While analyzing the problem area, they identified that with limited turnover, low margin was the biggest problem. Due to this, they will not be able to offer good discount to the customers, due to which they were not able to build regular sales. In turn, no customer loyalty. Due to low sales, many products used to reach their expiry date, and product management in store used to become a very time consuming activity, which needed more manpower to handle expired product, more space to store this expired product. When they were thinking for a solution, they soon identified instead of struggling for higher margins, if they focus on high turnover, this can solve their many problems. But how to do that? After due analysis, their management come up with an extraordinary policy which really required a courage to implement. They decided that they will buy from factories at the lowest possible rates. They will sell to customer who need to buy in very small quantities. Even though quantities are less, they will sell all the product just little bit above factory prices. And yes, they will not sell to shopkeepers and other traders. They will only focus on customers and win their loyalty. This policy became their formula for success, their business strategy, and their business mode. Hope you have seen my very first video on which I talked about business mode, which clearly defines how a business mode works and what a kind of positive impact it can have on your business growth. With above things in mind, these store owners, when they started implementing, they got super success and advantages like they created a outstanding value for the customer and build a good customer loyalty. They got high sales turnover. They kept that heavy competition out of the focus. And further, the ratio of expired product management reduced. Further, it will keep their staff utilization in sales support activities instead of managing expired products. And finally, they can now expand their stores with confidence as they got a format which can be implemented in any city in India.
A simple but courageous policy decision changed it all. Friends, I will now like to summarize what we learned today. Also, you can write your questions to us. For that, please click on the link which we have given in the description and enter your questions. Also, मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में एक ऐसा पॉइंट लिखिए जो आपको समझ में आया है, उसके ऊपर हम आपको ज़रूर रिप्लाई करके रिकॉग्नाइज करेंगे। फ्रेंड्स, तो आज हमने ये सीखा कि बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज कैन मेक और ब्रेक योर बिजनेस। समटाइम्स अपने बिजनेस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ही अपने बिजनेस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है। बिजनेस कितना भी बड़ा हो जाए या कितना भी एक्सपांड हो जाए, कस्टमर्स के लिए जो वैल्यू क्रिएट करना है उसी के वजह से वो ग्रो करता है। बाकी सारी फैक्टर्स अपने आप बिजनेस ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं। हमने हमेशा ये पता रहना चाहिए कि हम किस टाइप के कस्टमर्स को सर्व करते हैं और किस टाइप के कस्टमर्स को हम सर्व नहीं करते। इससे हम अच्छी बिजनेस पॉलिसी बनाकर अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं अपने वीडियोस में बोलने वाला हूँ एक मील सर्विसेज बिजनेस का एग्जांपल लेके कैसे इनडायरेक्ट मार्केटिंग करके आपके कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। इनडायरेक्ट मार्केटिंग में पहले आप अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट एक्वायर करते हैं, फिर आप उसको नर्चर करते हैं और फिर आप उनको सेल्स करते हैं। फिर एक ज्वेलरी बिजनेस का एग्जांपल लेके मैं आपको ये समझाऊंगा उनका ऐसा कौन सा प्रोडक्ट पर फोकस करने की वजह से उनके 2 शॉप्स का डेवलपमेंट 10 शॉप्स में हो गया। फिर एक फ्लोर मिल बिजनेस का एग्जांपल लेके मैं आपको ये बताऊंगा कि उन्होंने अपने पैकेजिंग को यूज करके कैसे शोकेस किया प्रीमियम क्वालिटी अपने प्रोडक्ट्स का एंड डिफरेंशिएट किया अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से और अपना सेल्स इंक्रीज किया। होप हमारे ये वीडियोस भी आपको पसंद आएंगे और आप इनसे भी अपने बिजनेस को ग्रो करने का तरीका सीखोगे। टू वॉच माई इंटरेस्टिंग अपकमिंग वीडियोस, डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड फॉर नोटिफिकेशन प्रेस बेल आइकॉन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन पे भी फॉलो कीजिए। आज के आपके वक्त के लिए थैंक यू वेरी मच।